Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Teen Dubey here, and today I am going to teach you some examples based on gamma function. In my previous lecture video, we had already discussed what is gamma function, what is beta function, what is relation between beta and gamma function, as well as we did some very important theorems based on gamma function. Also, we have done Legender's duplication formula, which was very important. And in today's lecture video, I will tell you some examples, numerical examples based on gamma function. So let us start. Here is one example to prove that gamma 1 upon n, gamma 2 upon n, gamma of 3 upon n up to so on, gamma n minus 1 upon n is equals to 2 pi to the power of n minus 1 by 2 upon n to the power of 1 by 2, where n is a positive integer greater than 1. Okay, so we have to prove this line where n is a positive integer which is greater than 1. So let's start. Let us take this given equation, left hand side of this equation as capital P. Okay, in next step what I have done, only write n minus 2 upon n as 1 minus 2 upon n. Similarly, n minus 1 upon n can be written as 1 minus 1 upon n, and give this equation number 1, writing the values of p in reverse order. Okay, what I am doing in my next step, I am writing this equation number 1 in reverse order. ओके, इसी इक्वेशन को अब हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. तो LHS में आपका P एज इट इज रहेगा, राइट साइड में आपको ऑर्डर रिवर्स करना है. ओके, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, गामा 1 अपॉन एन से, और अप टू सो ऑन जा रहा था गामा ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन. रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा तो लास्ट टर्म फर्स्ट आ जाएगा, डेट इज गामा ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन, देन रिवर्स ऑर्डर पे आते जाएगा. तो गामा ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन एन अप टू सो ऑन गामा 3 माइनस गामा ऑफ 3 अपॉन एन, गामा ऑफ 2 अपॉन एन अप टू सो ऑन कहाँ तक, लास्ट टर्म आपका हो जाएगा गामा 1 अपॉन एन. गिव दिस इक्वेशन नंबर 2. Okay, now you have to multiply equation 1 and equation 2. On multiplying equation 1 and 2, what we will get, on left hand side p into p, that is equals to p square. On right hand side we have to multiply each terms. Okay, so gamma 1 by n into gamma of 1 minus 1 by n. Similarly, gamma 2 of 2 upon n is multiplied by gamma of 1 minus 2 upon n up to so on. Multiply each terms. Okay, now here we are using one formula, which is gamma of r upon n into gamma of 1 minus r upon n is equals to pi upon sine r pi upon n. From where it comes, it is a formula. Okay, it is a formula of gamma function. So here we are using this formula. You can observe that each term in brackets are in this form. Okay, फर्स्ट ब्रैकेट में है आपका गामा 1 अपॉन एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन. सेकेंड टर्म में है गामा 2 अपॉन एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन एन. उसी तरीके से थर्ड टर्म में है गामा 3 अपॉन एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन एन. तो आप एक एक टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में है, आर अपॉन एन 1 माइनस आर अपॉन एन इस फॉर्म में है. तो मैं हर एक टर्म के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकती हूँ. फर्स्ट टर्म पे अगर मैं अप्लाई करूँ इसी फॉर्मूले को, तो फॉर फर्स्ट टर्म वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो फर्स्ट टर्म के लिए इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन पाई एन, दैट इज दिस पाई अपॉन साइन पाई एन. इसी तरीके से सेकेंड टर्म में आर की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा पाई अपॉन साइन 2 पाई अपॉन एन. थर्ड टर्म के लिए आर की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा पाई अपॉन साइन 3 पाई अपॉन एन अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म आपका क्या है, 1 माइनस एन से लेकर 1 अपॉन एन तक जा रहा है. ओके, तो लास्ट टर्म आपका हो जाएगा पाई साइन 1 एन माइनस 1 अपॉन एन पाई. Okay, basically we are expanding it, and in first term r is 1, second term r is 2, third term r is 3 up to so on. r expand हो रहा है आपका n तक जा रहा है, तो somewhere before n there will be a point n minus 1. Okay, so this expansion is like this. Now in power,
In numerator you can see pi multiplied by pi up to so on pi to the power of n minus 1. Last term is of degree n minus 1 and we are multiplying pi up to n minus 1 term. Therefore we can write pi to the power of n minus 1. अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते, पाई स्क्वायर. 3 पाई का मल्टीप्लिकेशन होता तो पाई क्यूब. 4 पाई का मल्टीप्लिकेशन होता तो पाई टू द पावर ऑफ 4 आता. हम कितने पाई का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम n टू द पावर ऑफ n माइनस पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 पाइस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. तो क्या आ जाएगा, पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1. अपॉन में वैल्यूज सिमिलर है, साइन पाई अपॉन n इंटू साइन 2 पाई अपॉन n अप टू सोन साइन n माइनस 1 पाई अपॉन n. नाउ बट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो डैट, ट्रिग्नोमेट्री का हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. क्या होता है फॉर्मूला, साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 to the power of n minus 1 sin theta plus pi by n sin theta plus 2 pi by n up to so on sin theta plus n minus 1 pi upon n. This is formula. Okay, it is a formula from trigonometry. Trigonometry में हमने ये formula पढ़ा हुआ है. This is expansion of sin n theta upon sin theta. इसको हम कैसे expand करते हैं, इस प्रकार से, जो आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा. अब टेकिंग थीटा टेंड्स टू 0 वी गेट, जैसे ही हम थीटा को 0 की ओर अग्रसर करेंगे, थीटा टेंड्स टू 0 होगा, तो आप देखेंगे इसी इक्वेशन को, अब हम इक्वेशन नंबर 4 को ही कैलकुलेट कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले कैलकुलेट कर रही हूँ. मुझे क्या करना है, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करना है. तो लिमिट हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है. ओके, सो लेफ्ट साइड में जब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0 साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू है. इसमें मैं क्या कर रही हूँ, साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसमें एक n थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और एक n थीटा का डिवाइड. यहाँ पे देख सकते हैं साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना टर्म था, तो मैंने क्या किया, n और थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया और उसी का नीचे डिवीजन किया, तो मुझे बेसिकली ये वैल्यू मिली. इसमें हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है थीटा टेंड्स टू 0. जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी. आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू भी 1 होती है. तो जैसे ही आप ये लिमिट अप्लाई करोगे, दोनों टर्म की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी. क्या बचेगा, n इंटू 1 दैट इज n. तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1. किसकी वैल्यू 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट वाले पार्ट की वैल्यू आपकी 1 आ गई. अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी 1 नहीं, n आ गई. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. ये जो वैल्यू n आई है मेरी इक्वेशन नंबर 4 में लेफ्ट साइड, तो इसी इक्वेशन नंबर 4 में मैंने वैल्यू को पुट कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया n, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, हम क्या ले रहे हैं, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जिसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही है. तो लेफ्ट साइड जब लिमिट अप्लाई किया तो सॉल्व करने पे मुझे वैल्यू n आई, तो लेफ्ट साइड मैंने n लिख दिया. अब राइट साइड भी तो मुझे लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा. तो राइट साइड जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो ये जो फॉर्मूले का पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसमें जब लिमिट अप्लाई करोगे तो थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वैल्यू आपको मिलेगी n माइनस 1 साइन पाई बाय n साइन 2 पाई बाय n साइन 3 पाई बाय n अप टू सो ऑन साइन n माइनस 1 पाई बाय n. इम्प्लाइज दैट क्या क्या है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और उसी को रीअरेंज करके लिख दिया. ओके, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5. अब आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर जो अभी बनाया 5 उसको, और इक्वेशन नंबर 3 जो हमने प्रीवियस बनाया था. आप देखेंगे दोनों ही इक्वेशन की वैल्यूज आपकी क्या है, एक साइड की वैल्यू सेम है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, ये वाली सीरीज है, साइन पाई अपॉन n साइन 2 पाई अपॉन n अप टू सो ऑन. इसी तरीके से जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में ये जो हमारा टर्म आया था, इसका डिनोमिनेटर क्या है, यही सीरीज है. तो ये इक्वेशन क्या था, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन ये वाली सीरीज, और इस सीरीज की वैल्यू हमने निकाल ली है अभी इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 5 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 में हमने इस सीरीज की वैल्यू निकाल ली है. तो इक्वेशन नंबर 5 और 4 को कंपेयर करके जब लिखोगे 5 और 3 को सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1. रीअरेंज किया,
क्या मिला 2 पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, p स्क्वायर था तो पूरे इक्वेशन को स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड रूट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। जैसे ही रूट लोगे लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी वैल्यू 2 पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2, और नीचे आपकी वैल्यू क्या थी n टू द पावर n था तो उसमें भी आ जाएगा n टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, p इज इक्वल्स टू दिस आ गया, और p क्या है हमारा, p हमारा जो गिवन सीरीज था उसी को हमने p लेट किया था, तो अब आप सीरीज को वापस लिख सकते हो। तो दिस सीरीज इज इक्वल्स टू दिस, और यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रूविंग पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं गामा फंक्शन पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हियर इज वन एग्जांपल, इवेल्युएट गामा ऑफ -1/2 कॉमा गामा ऑफ -5/2। यहाँ पे हमको दो वैल्यू इवेल्युएट करनी है, यानी कि दो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक है गामा -1/2, एक है गामा -5/2। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम गामा -1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला, गामा फंक्शन का फॉर्मूला, जो अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज किया था। क्या होता है फॉर्मूला, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन साइन n पाई। ये आपका इक्वेशन है। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, और इसी इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू मुझे क्या चाहिए, गामा ऑफ -1/2। तो ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है, इसी इक्वेशन में n की वैल्यू मैं -1/2 पुट कर लूँ। ओके, पुट n इज इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ऑन पुटिंग वी गेट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा गामा ऑफ -1/2 इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 1/2 दैट इज 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वैल्यू पूरी एज इट इज है, बस जहाँ पे जो n है n की जगह मैंने पुट कर दिया -1/2। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन ऑफ -5/2। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन थीटा पे 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे पाई अपन क्या आ गया, -1 विच इज इक्वल्स टू -पाई। अब वापस से आ जाओ, लेफ्ट साइड मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, गामा ऑफ -1/2 एंड गामा ऑफ 3/2। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से गामा ऑफ 3/2 को शिफ्ट कर दो राइट साइड। इससे क्या होगा, आपका गामा ऑफ -1/2 की वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही किया मैंने अगले स्टेप में, गामा -1/2 एज इट इज है, और गामा 3/2 को उठा के शिफ्ट कर दिया राइट साइड। राइट साइड आपकी वैल्यू क्या थी, -पाई, शिफ्ट करने पे क्या आ जाएगा, -पाई अपॉन गामा 3/2। ओके, तो विच विल बी इक्वल टू -पाई अपॉन गामा 3/2 को अब मुझे सॉल्व करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। यही बेसिक फॉर्मूला यूज होगा हर जगह। तो गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू होती है n गामा n। यहाँ पे है गामा ऑफ 3/2, तो गामा 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 के फॉर्म में। गामा ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया। 3/2 को मैंने एक्सपांड करके कैसे लिख दिया, गामा ऑफ 1/2 प्लस 1। अब इसको n गामा n के फॉर्म में लाना है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो n गामा n यानी कि 1/2 इंटू गामा 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गामा 1/2। क्लियर है, यहाँ पे गामा 3/2 थी आपकी वैल्यू, इसको n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा, तो गामा ऑफ 1/2 प्लस 1, और फॉर्मूला लगाने पे 1/2 गामा 1/2। अब एक क्वेश्चन हमने ऑल प्रीवियस सॉल्व कर चुका है, एक थ्योरम सॉल्व किया है जिससे हमको पता है कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √पाई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -पाई अपन गामा 1/2 इंटू √पाई। ओके, सॉल्व किया। न्यूमरेटर में जो पाई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √पाई इंटू √पाई लिख सकते हैं। तो एक √पाई कैंसिल होकर बेसिकली ओवरऑल हमको आंसर मिलेगा -2 √पाई। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, गामा ऑफ -1/2 की। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हो गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू।
अब की बारी आपको क्या करना पड़ेगा, वही गिवन इक्वेशन में जो हमने लिया था इक्वेशन नंबर 1, इसी वाले इक्वेशन में अब हमको रखना है वैल्यू, n की वैल्यू रखनी है -5/2। जैसे ही इस इक्वेशन में आप n की वैल्यू -5/2 रखोगे, देखो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, गामा ऑफ -5/2 गामा ऑफ 7/2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन -5/2 पाई। अगेन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप में 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 3π/2 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ पाई प्लस 3π/2 हो गया, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, एंगल तो चेंज नहीं होता लेकिन सिंबल क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन 3π/2। ओके, ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस, तो ओवरऑल पूरा टर्म आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप साइन 3π/2 को आप फिर से ब्रेक कर सकते हो कि नहीं। साइन 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/2 इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। फिर से साइन 180 प्लस थीटा हो गया जिसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी, तो माइनस साइन पाई/2 और साइन पाई/2 यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है, 1, तो अपॉन में आ गया आपका -1। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -पाई। आंसर नहीं आया है अभी इस इक्वेशन का वैल्यू आई है, इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई -पाई। तो मुझे क्या वैल्यू मिली, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी वैल्यू थी गामा ऑफ -5/2 इंटू गामा 7/2 और इसकी वैल्यू आई है -पाई। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, तो क्या करना है, गामा 7/2 को शिफ्ट कर देना है, तो हो जाएगा -पाई अपॉन गामा 7/2। अब गामा 7/2 को फिर से n+1 के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो 7/2 को क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ 5/2 + 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप n+1 के फॉर्म में आ गया तो ये हो जाएगा n गामा n, तो ये हो गया 5/2 गामा 5/2। अगेन 5/2 को ब्रेक करो n+1 के फॉर्म में तो हो जाएगा 3/2 + 1, और फिर से n गामा n का फॉर्मूला लगाओगे तो 3/2 भी बाहर आ जाएगा और गामा 3/2 बचेगा। उस 3/2 को फिर से n+1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, यानी कि 1/2 + 1। तो ओवरऑल आपको एक्सपांड करने पे मिलेगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू अब फिर से रख दो √पाई, और ये सारे टर्म्स को सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर में क्या है, 5 × 3 दैट इज 15, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 × 2 दैट इज 8। अगेन न्यूमरेटर का पाई को आप √पाई इंटू √पाई लिख सकते हो, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ एक √पाई बचेगा, और 15/8 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये 8/15 विथ माइनस साइन। तो आपका फाइनली आंसर गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू आ गई -8/15 √पाई। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि गामा फंक्शन पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।